Hello, my dear students. In hydrocarbon lecture number 3, generally we are discussing the chemical properties of hydrocarbon. The important properties are, among them, the second one is oxidation. Oxidation is nothing but one type of combustion. Combustions are three types: combustion with excess oxygen, combustion with steam, and combustion with limited oxygen means incomplete. Okay, so when oxidation is carried out of any alkane with excess oxygen means complete combustion. This is the alkane formula. N is equal to number of carbon. So any alkane, by using this general formula, you can write this is N plus 1 O2. Suppose if we write C2H6 ethane, okay, this is a CnH2n plus 2. So 3n plus 2. So 3 to the 6 plus 1, 7. So 7 by O2, 7 by 2 oxygen required. So we get N, 2 carbon dioxide plus how much N plus 1 means the 3 O2. So we require 3 to the 6 and this 2 to the 4, 7 oxygen, and these are nothing but the 7 oxygen. So any alkane reaction, combustion reaction, you can write by using this general formula. With a steam, when methane is burned in a steam, then we get carbon monoxide and hydrogen gas, and this one is nothing but water gas. This is a good method for the production of water gas. See, my dear friends, in NEET and in G main exam, generally this type of normal questions asked. Already you observed this year paper. So many students scored good mark in JEE exam, especially in chemistry. They can give direct answer of some questions. So please prepare it sincerely. Limited oxygen means two ways are there. Either carbon monoxide is prepared or only carbon black is prepared. Okay. So it is depend upon the reaction conditions. So see, in this condition, if medium oxygen is provided, 3O2 is there, medium oxygen is provided, very less provided means a very less combustion, carbon black is obtained, and slight more is provided, then carbon monoxide is obtained. Excess is provided, then carbon dioxide is obtained. So carbon, carbon monoxide and carbon dioxide. With steam, water gas is obtained. Remember. Then after catalytic oxidation, this one is the good method. We can prepare many organic compounds from alkane. So see, this one is the good one. Alkane oxidation. Oxidation in copper tube. Alcohol is prepared. Molybdenum oxide. Aldehyde is prepared. If alkane methane is there and if it is heated at high temperature, then alkyne is obtained. If it is heated normally at this temperature, then carboxylic acid obtained. Silver oxide catalyst carboxylic acid oxide. Carboxylic acid is obtained. If higher alkane is there, higher carbon, then and if oxidation is carried out, then tertiary alcohol is obtained. But the condition for this tertiary alcohol, that one is this higher hydrocarbon must have tertiary carbon. Okay, सॉरी टर्शरी हाइड्रोजन. अगर अल्केन के पास टर्शरी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शरी अल्कोहल नहीं मिलेगा. तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन. पायरोलिसिस, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. अभी 2008-9 में भी एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल, मैं लास्ट में नोट करके दूंगा. पायरो मीन्स हीट देना है. लिसिस मीन्स वो पूरा अल्केन ब्रेक हो जाएगा, लूज हो जाएगा. किसी भी अल्केन को आप हीट करेंगे, ये हीट कम नहीं होती, बहुत होती है, तो हमको लोअर लेवल अल्केन्स मिलते हैं, अल्किन्स मिलते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. ठीक है. मैकेनिज्म सभी पायरोलिसिस का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आपको ब्रेक करना है तो ये ऑक्साइड चाहिए. क्रोमियम का वेनेडियम मोलिब्लेडम ऑक्साइड लेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा.
ठीक है। और कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर आपको ब्रेक करना है ये, तो आपको सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और जिंक का ऑक्साइड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम सिंपल पायरोलिसिस करते हैं। मीथेन का पायरोलिसिस 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, इथेन पायरोलिसिस 2 कार्बन एंड 1 मोल हाइड्रोजन, ठीक है। तो अल्केन डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अल्किन, अल्केन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 कार्बन का अल्केन मिलता है। देखिए टेम्परेचर दोनों कंडीशन में, टेम्परेचर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पायरोलिसिस आपको अपने आप करना है। देखिए 3 कार्बन है, आपको सोचना कैसे है इसमें, ये 3 कार्बन जो है, तो आप ऐसा लिख लीजिए कि ये 3 कार्बन कितनी पॉसिबिलिटी से आप ब्रेक कर सकते हो, 2 एक से ब्रेक कर सकते हो, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखिए मैंने 2 और 1 में इसको ब्रेक कर दिया है। कार्बन कार्बन फिशन, अगर आप कार्बन हाइड्रोजन फिशन सोचते हो तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तो ब्रेक होने वाला नहीं है। किसी 2 कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो और वहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दो, तो 3 कार्बन वाला अल्किन और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। एक बात याद रखना, जब भी आप कार्बन हाइड्रोजन फिशन करते हो तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी और जो हमारे पास अल्केन है उसका हमको अल्किन मिलेगा। अब 6 कार्बन वाला हम पायरोलिसिस करते हैं। देखिए आपको पॉसिबल प्रोडक्ट ऑप्शन में पूछी जाती है, तो 6 कार्बन में पहले मैं करता हूँ कार्बन हाइड्रोजन। तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और C6H12 CnH2n मतलब कि अल्किन मिलता है। दूसरा ये 6 कार्बन वाली चेन है, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। 1 2 3 4 5 6 मैं क्या कर सकता हूँ, 1 5 में डिवाइड कर सकता हूँ, 2 4 डिवाइड कर सकता हूँ, 3 3 डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन में तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन निकालना है और पूरा ये जो अल्केन है ये C6H14 वो अल्किन बन जाता है, उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो मैंने पहला जो ब्रेक किया है वो 4 2 का किया है। 4 वाला जो है वो अल्किन है, ये C2H6 अल्केन है, तो अल्किन अल्केन। अब 3 2 1 में किया है, ये 3 कार्बन और 2 कार्बन का ब्रेकिंग और 1 कार्बन, तो 1 कार्बन वाला अल्केन है, ये 3 और 2 कार्बन वाले 2 अल्किन है, ठीक है। तो 3 + 2 + 1 कार्बन का ब्रेकिंग, ये कार्बन कार्बन ब्रेकिंग है, ये भी कार्बन कार्बन ब्रेकिंग है, ये कार्बन हाइड्रोजन ब्रेकिंग है, ठीक है। और पॉसिबल है तो आप जरा देख लेना, ठीक है। और ये जो C8H18, तो देखिए 4 4, इसमें मैंने हाइड्रोजन वाला किया है लेकिन 3rd 4th पोजीशन पे किया है। 4 4 कार्बन का ब्रेकिंग किया, 8 कार्बन की मेरे पास चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इस 8 कार्बन की चेन से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉसिबल आपको पायरोलिसिस ब्रेकिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने 4 + 4 का ब्रेकिंग किया है, देखिए यहाँ 6 + 2 का किया है, यहाँ पे 4 + 2 + 1 का किया है, 1 कार्बन अल्केन ही होगा। यहाँ पे मैंने कार्बन हाइड्रोजन का ब्रेकिंग किया है तो वही अल्केन अल्किन बन जाएगा। देखिए C8H16 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। फिर मैंने 6 2 का किया है, 6 + 2 का ये वाला। दूसरा ये C6H14 और C2H4, है ना। तो ये 6 2 ये दोनों में अल्किन है, ये एक अल्किन है एक अल्केन है। बाद में 7 + 1 का किया है, 7 + 1। ये पायरोलिसिस करना एक टाइप का जो है वो गेम है, मतलब कि आपको ब्रेक करके कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाइड करनी है। आपकी प्रोडक्ट अल्केन अल्किन और हाइड्रोजन गैस उससे आगे नहीं जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको आगे नहीं करना है 8 कार्बन तक, मैंने 6 कार्बन तक ही एग्ज़ाम में आता है लेकिन ये 8 कार्बन तक मैंने किया है ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले। अब आइसोमराइजेशन मतलब कि हमारे पास जो सिंपल चेन है उसको ब्रांच में कन्वर्ट करना है, एक आइसोमर्स टू सेकंड आइसोमर्स कन्वर्ट। तो देखिए ये नॉर्मल ब्यूटेन, जनरली उसमें एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। तो ये जो नॉर्मल है, तो देखिए ये ब्रांच में कन्वर्ट हो गया, ये नॉर्मल, तो ये आइसो, IUPAC नाम अपने आप दे सकते हो। अब देखिए ये आइसो है 2 मिथाइल पेंटेन, मतलब कि ये आइसोहेक्सेन है, 6 कार्बन टोटल है।
1 2 3 4 5 चेन में और एक मिथाइल। तो देखिए ये सीधा ब्यूटेन में कन्वर्ट हो गया 2,3 डाई मिथाइल। यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे दो ब्रांच आ गई। तो अगर आपको ब्रांच में कन्वर्ट करना है तो कभी एग्जाम में आपको ये देखिए, हाइड्रोकार्बन बहुत ही लेंथ वाला टॉपिक है। मैंने बहुत मतलब उसमें से एक्सट्रैक्ट करके जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है, वही आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अब एरोमेटाइजेशन में अगर आप देखें तो जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और उसको सीधा कन्वर्ट करना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। दिस नॉट बर्निंग विथ अ सूटी फ्लेम, दिस बर्न विथ अ सूटी फ्लेम। अब ये देखिए नॉर्मल हेक्सेन, ये दो कैटालिस्ट आपको याद रखने हैं, या तो क्रोमियम का ऑक्साइड या तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। टेम्परेचर भी बहुत होता है, रेड हॉट ट्यूब होती है कॉपर की, जिंक की, आयरन की, उसमें थोड़ा प्रेशर डालना होता है, ठीक है। आपको डिजिट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जी वाले भी जानते हैं, नीट वाले भी जानते हैं कि भाई इतना डिजिट तो कोई बच्चा याद नहीं रख सकता, लेकिन आपको पता होना चाहिए सिर्फ कि हाँ ये इसमें कौन सा मटेरियल लगता है, कि कैटालिस्ट लगता है कि जो ये सीधा नॉर्मल हेक्सेन है, ये नॉर्मल हेक्सेन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे गलती है, साइक्लोहेक्सेन है ना। ये सीधा साइक्लोहेक्सेन बेंजीन में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हुआ? ये सीधा बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो है भाई साहब एलिफेटिक है, तो ये एरोमेटिक हो गया। ये एक बात फिर से कल आपको आपका ध्यान में ड्रॉ करूँ यहाँ पे कि ये नॉर्मल नहीं है। अब देखिए ये नॉर्मल हेप्टेन है, ये सीधी चेन है 7 कार्बन की। मैंने थोड़ा इसको लाइन स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन है, सीधा भी कर सकते हो, नॉर्मल हेप्टेन। अब नॉर्मल हेप्टेन में से देखिए आपको ये टॉल्विन मिल गया, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। 6 कार्बन की चेन बन गई और एक कार्बन एज CH3 ऊपर ब्रांच में यहाँ पे आ गया ना इधर, देखिए। तो ये हो गया क्या? बेंजीन। यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन ऐसे बाई प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। आप ये सभी जगह पे एक एक हाइड्रोजन निकलेंगे, ये 6 कॉर्नर से 6 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो +3H2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अब नोकिंग हम 11th में शायद बहुत कम पढ़ते हैं, सिर्फ 1-2 सेंटेंस आता है। तो नोकिंग में थोड़ा आपको ध्यान देना है, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने ड्रॉ आउट कर लिया है, ठीक है, जितना यूज़फुल है उतना, वरना नॉकिंग बहुत ही डीप टॉपिक है। तो जैसे हम कोई गाड़ी का इंजन चलाते हैं, व्हेन इंजन स्टार्ट, तो आजकल आप देखते हो कि गाड़ी स्टार्ट होती है तो पता नहीं चलता है, इंजन में से आवाज़ नहीं निकलती। अगर आप बुलेट चलाते हो तो इंजन में से आवाज़ निकलती है। तो जो साउंड, मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है, ये किस लिए प्रोड्यूस होता है? ये उसमें जो हम फ्यूल डालते हैं उसका इरेगुलर बर्निंग होता है, बर्निंग ऑफ द फ्यूल। तो इंजन का जो आवाज़ आता है, उस आवाज़ से नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। उसको रिड्यूस करने के लिए पेट्रोल, डीजल, उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जो इंजन की आवाज़ को कम करते हैं। आपने वो सुना होगा, छकड़ा रिक्शा आता है ना, जिसमें 30-30 32-32 गांव में लोग बैठ के जाते हैं, तो कितना आवाज़ करता है, उसको बोलते हैं नॉकिंग, ठीक है। तो नॉकिंग, अगर हम स्ट्रेट चेन अल्केन वाला फ्यूल है हमारा, सीधा हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन जैसा है ना, तो उस इंजन में नॉकिंग ज़्यादा होता है। ब्रांच अल्केन जो है उसमें नॉकिंग कम होता है। अल्किन फ्यूल में अगर है तो नॉकिंग उससे कम होता है। साइक्लो अल्केन्स हम लेते हैं, जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो नॉकिंग बहुत कम होता है। और हाइड्रोकार्बन अगर एरोमेटिक लेंगे तो बहुत ही कम नॉकिंग इंजन का आता है, ठीक है। अब उसमें एक सर्च किया गया है कि अगर आप हेप्टेन पेट्रोल डीजल में रहा तो उस इंजन में ज़्यादा आवाज़ आएगी, तो केमिस्ट्री में बोला जाता है कि उसका ऑक्टेन नंबर 0 है। अगर आइसो ऑक्टेन अगर हम डालेंगे तो उसमें इंजन में बहुत ही कम नॉकिंग होता है, तो उसका बहुत ही कम नॉकिंग होता है उसका, इसलिए ऑक्टेन नंबर 100 दिया जाता है। तो जो फ्यूल में ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होता है
वो फ्यूल इंजन के लिए बहुत बढ़िया होता है, लेकिन महंगा पड़ता है। ठीक है, तो ये इसमें बहुत नॉकिंग आता है। जैसे हम रिक्शा पेट्रोल पे चलाते हैं, ठीक है, आप केरोसिन डाल के देखो तो इंजन में से आवाज़ ज़्यादा आता है, और लोअर लेवल का केरोसिन डाल के देखो तो बहुत इंजन आवाज़ करता है, उसको नॉकिंग बोलते हैं। तो ऑक्टेन नंबर जो है, मेटालिक साउंड जो प्रोड्यूस होता है, वो ज़्यादा ऑक्टेन नंबर हम रखेंगे तो कम साउंड होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है नॉकिंग का ये है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऑक्टेन नंबर कैसे तय किया जाता है। तो जिस फ्यूल में जितना परसेंट हम आइसो ऑक्टेन डालेंगे, है ना, जितना परसेंट हम आइसो ऑक्टेन डालेंगे, जैसे कि एक फ्यूल मैं यहाँ ले रहा हूँ जिसमें 60% आइसो ऑक्टेन है, 40% हेप्टेन है, तो हम बोलेंगे कि इसका ऑक्टेन नंबर 60 है। और एक बात है कि अगर आप नॉकिंग को रिड्यूस करना चाहते हो तो एक तेल करके केमिकल आता है जिसका नाम है टेट्रा इथाइल लेड ना। केमिकल फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, टेट्रा इथाइल लेड, वो तो आप अपने आप भी बना सकते हो। ये इथाइल ग्रुप है, वो टेट्रा 4 टाइम और लेड पीबी। अब तो आप केमिस्ट्री में मास्टर हो गए हो। जिसमें बेस्ट जो है वो BTX आता है। कभी आप ऑयल में देखिए, आप हम इंजन में ऑयल डालते तो उसमें लिखा होता है BTX। मतलब ये मिक्सचर क्या होता है, बेंजीन, टोल्यूइन, साइलिन, ये तीनों एरोमेटिक है, और इसका ऑक्टेन नंबर साहब 90 हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर होता है, जिससे इंजन जो है नॉकिंग कम करता है। अब जो डीजल इंजन है, ये अभी जो मैंने बात की वो सब पेट्रोल इंजन की बात की। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जिसमें हम एज ए फ्यूल डीजल यूज़ करते हैं, तो डीजल में आता है C10 नंबर। जैसे कि हेक्साडिकेन 16 कार्बन वाला कंपाउंड है, उसको हम C10 बोलते हैं, इसका कॉमन नेम C10 है। तो अगर ये C10 पूरा वही डालते हैं तो उसका C10 नंबर 100 हो जाएगा, लेकिन C10 पूरा नहीं डालते हम लोग। C10 is added in some percentage, more percentage than it is good. See, 75% C10 is there. How much? 75% C10 is there. 25% alpha methyl naphthalene is added. So this percent is nothing but C10 number. ओके, तो यहाँ पे मैं हाइड्रोकार्बन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आपसे डिस्कस की। अब हाइड्रोकार्बन में हम नेक्स्ट आएंगे आल्किन्स। अल्किन यू नो वेरी वेल, मैं ज़्यादा उसमें आपका टाइम नहीं बर्बाद करूँगा। कॉमन फार्मूला आप जानते हो अल्किन का, है ना, CnH2n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। ये दोनों कार्बन, जहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन in compound, at least one carbon double bond carbon require, and both carbon are sp2 hybridized and planar. Both carbons are sp2 hybridized and planar. ठीक है, ये प्लानर है पूरा। अब इसकी स्टेबिलिटी, सेट-जेफ रूल पे चले जाइए, सीधा मैं सेट-जेफ पे आ जाता हूँ। कॉम्पिटिटिव में तो डायरेक्ट जो कॉम्पिटिटिव इंपॉर्टेंट है वो, बाकी कुछ IUPAC नेम वो वगैरह आपको पता है। मोर अल्काइल ग्रुप लगेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के आसपास तो मोर स्टेबिलिटी आएगी। देखिए यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास 4 अल्काइल ग्रुप है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप है तो ये कम स्टेबल है। यहाँ पे एक कार्बन पे और एक कार्बन पे बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे कार्बन पे एक है। तो आपको ये दोनों में कन्फ्यूज़न होगा, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा कि इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो आपको इसमें क्या देखना है, what you have to observe here, कि ये दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है। आप कैसे डिसाइड करोगे ये दोनों में? तो एक कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप है, ये अलग अलग कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो एक कार्बन पे 2 अल्काइल वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप वाला कम स्टेबल होता है। अब यहाँ तो कम हो गया, एक ही अल्काइल ग्रुप बच गया है, और यहाँ पे बिल्कुल अल्काइल ग्रुप नहीं है, 2 हाइड्रोजन है दोनों तरफ। इज इट क्लियर? सो दिस वन इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्किन। आपको देखना है सिर्फ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। नाउ प्रिपरेशन।
तो मेजोरिटी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स आर द एलिमिनेशन मेथड। एक कार्बन से कुछ निकलेगा, दूसरे कार्बन से और कुछ निकलेगा, और उसको हम रिएक्शन का नाम देंगे। अगर यहाँ से हेलोजन निकला है ना, यहाँ से अगर हेलोजन निकला और यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो हम बोलेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अगर X हमारा हाइड्रोजन है और Y हमारा OH है तो हम बोलेंगे डीहाइड्रेशन। ठीक है, तो सब रिएक्शन, अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, X भी हाइड्रोजन है, Y भी हाइड्रोजन है, तो हम बोलेंगे डीहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो डीहाइड्रोजिनेशन। एमोंग देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डीहाइड्रेशन। एक अल्फा कार्बन से OH निकालेंगे, बीटा कार्बन से H निकालेंगे। ठीक है, ये H2O निकल जाएगा, तो इस H2O को एब्सॉर्ब करने के लिए हमें एसिड चाहिए, डीहाइड्रेटिंग एजेंट। ये 1 2 3 में से कोई 4 में से कोई भी यूज़ आप कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, या तो पैराटोल्यून सल्फोनिक एसिड, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये डीहाइड्रेशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर तो ऑलरेडी हम अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ चुके हैं, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल। ओके, टर्शरी हाईएस्ट, सेकेंडरी लोअर, प्राइमरी लोएस्ट। इसमें अगर आप रीज़न देना चाहें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, वो भी आप पढ़ चुके हो, मैंने मैकेनिज्म के साथ आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें करवाया है, हेलो अल्केन में भी, और यहाँ में भी डिहाइड्रेशन आता है। अब जैसे ये रिंग आ जाती है ना, ये एरोमेटिक एक भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये OH निकल जाएगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा उस इस कार्बन पे, है ना, तो यहाँ रेजोनेंस लगेगा। देखिए प्लस, सिंगल डबल, सिंगल डबल, तो इसमें रेजोनेंस ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये OH निकल जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा पहले मैकेनिज्म में, तो प्लस, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, इसके बाद डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस है। यहाँ पे तो लंबा रेजोनेंस है, यहाँ से चालू होगा यहाँ तक जाएगा, यहाँ तो यहाँ से चालू होगा तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तो बिल्कुल रेजोनेंस है ही नहीं। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो यहाँ पे अगर आप रीज़न देना चाहें तो ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगी, इसमें थोड़ी कम मिलेगी, इसमें बहुत कम मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिपरेशन जब आप करते हैं किसी भी मेथड से अल्किन का, तो कौन सा अल्किन मेजर प्रोडक्ट होगा, वो एवरी टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड द सेट-जेफ रूल। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, एंड दैट वन इज द 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट, और इसको बोलेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी। अगर हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो हाइड्रोजन शिफ्ट बोलेंगे, अगर मिथाइल शिफ्ट होगा तो हम लोग मिथाइल शिफ्ट बोलेंगे। अब हम कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि कभी कभी एग्ज़ाम में इसका नाम बदल दिया जाता है, इसको रिट्रोपिनाकोल रीअरेंजमेंट बोला जाता है, या तो वेगनर रीअरेंजमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा हम ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए आपके सामने एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में मुझे करना है डीहाइड्रेशन। क्या करना है मुझे? डीहाइड्रेशन। ठीक है, चलिए डीहाइड्रेशन करते हैं। यहाँ से OH निकालें और यहाँ से H निकालें। ठीक है, तो ये आ गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन ये प्रोडक्ट माइनर है। ये प्रोडक्ट क्या है? माइनर। अब यहाँ से OH निकालेंगे, ये बहुत मतलब कि मेजॉरिटी यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल में गलती करते हैं, उसको यही प्रोडक्ट लगती है कि यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ये मानो कि ये अल्फ़ा है तो ये बीटा, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, दूसरा बीटा कार्बन ये है, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो उनको यही प्रोडक्ट लगती है कि दिस वन इज़ द मेजर प्रोडक्ट, बाकी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन देखिए सब प्रोडक्ट तो ये है। ठीक है, ये 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, नहीं कि यहाँ मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये प्रोडक्ट नहीं मिलती है, लेकिन ये बहुत ही माइनर प्रोडक्ट है। अब चलिए देखते क्या होता है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे पहले हम शिफ्ट की बात कर लें। यहाँ नीचे ही कर देता हूँ ताकि आपको, चलिए पहले हम यहाँ से OH निकाल देते हैं। ठीक है,
ये निकल गया OH। आप ध्यान रखिएगा। तो कंपाउंड हमारा बना CH3 CH2 C, ऊपर एक CH3 है, नीचे एक CH3 है, यहाँ पे CH और OH और यहाँ CH3, और ये बना कार्ब केटायन। और साहब ये सेकेंडरी कार्ब केटायन है, आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, है ना। अब बाई शिफ्टिंग हाइड्रोजन, मैं एक आइडिया आपको दूं। पहले आपको आइडिया ऐसा आएगा कि ये हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये सेकेंडरी से प्राइमरी कार्बन बन जाएगा। तो कंपाउंड इंटरमीडिएट्स नेवर फॉलो द हायर स्टेबिलिटी स्टेट टू लोअर स्टेबिलिटी स्टेट, दे ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ हायर स्टेबिलिटी स्टेट देन द एग्जिस्टिंग स्टेबिलिटी। ओके, अभी यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी कार्ब केटायन तो है। अब मैं यहां से अगर ये मिथाइल को यहां शिफ्ट कर दूं, ये मिथाइल, इसको मैं नंबर 1 दूं, क्योंकि अल्फा बीटा मतलब 1 2 कार्बन दोनों एडजेसेंट कार्बन होते हैं, और इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये समझना जरूरी है। ये कार्बन मेरा कार्ब केटाइन नंबर 1 है, बाजू वाला ये नंबर 2 है, तो 2 नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे जा रहा है। अब देखिए इस कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाने से ये कार्ब केटायन हमारा सेकेंडरी से हो गया टर्शरी। तो सेकेंडरी से टर्शरी कार्ब केटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, और ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से माय डियर फ्रेंड्स ये शिफ्ट हो रहा है। अगर ये मिथाइल नहीं होता और हाइड्रोजन होता तो हम हाइड्रेट शिफ्ट बोलते हैं। वो शायद मैंने अल्कोहल फिनोल ईथर में एक बार किया है, लेकिन मिथाइल शिफ्ट नहीं किया है। I haven't done methyl shift. Here methyl shift I am explaining you. So whenever the situation arises by shifting hydrogen or methyl group from adjacent carbon, if a secondary carb cation converted to tertiary carb cation, if primary carb cation converted to secondary carb cation, तो उस कंडीशन में आपको ये शिफ्ट करना ही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो यहाँ ये OH निकल गया, OH निकलने के बाद यहाँ से एक मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ से मिथाइल तो यहाँ चला गया, अब ये हाइड्रोजन निकलेगा, OH तो पहले से निकल गया है, तो OH और H+ दोनों ये वाटर बाई प्रोडक्ट देते हैं। अब देखिए मेरा कंपाउंड ऐसा नहीं होता, चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन होता और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता, और अगर हाइड्रोजन नहीं होता और यहाँ पे हाइड्रोजन होता और यहाँ पे मिथाइल होता, तो आप लोग फ्री हो, यू आर फ्री टू शिफ्ट। पहले हाइड्रोजन ही शिफ्ट होगा क्योंकि मिथाइल बल्कि ग्रुप है, शिफ्ट होने में हाइड्रोजन, जहाँ तक शिफ्ट होने का सवाल है तो हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू स्टीरियोकेमिस्ट्री शिफ्ट होगा क्योंकि वो ईजी रहता है। ठीक है, आप सामान जब पैक करते हो, एक घर से दूसरे घर में ले जाते हो, तो आप क्या कंसिडर करते हो, कितना कंफर्टेबली हम इसको शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो शिफ्ट की बात आती है तो मिथाइल शिफ्ट होगा तो भी टर्शरी कार्ब केटायन बनेगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो भी टर्शरी कार्ब केटायन बनेगा। तो उस केस में हाइड्रोजन ही शिफ्ट होगा क्योंकि वो इजी रहता है, मिथाइल उसकी कंपैरिजन में बल्कि ग्रुप है। अगर दोनों मिथाइल ही है और हाइड्रोजन की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो फिर मिथाइल शिफ्ट करना है। तो मैं हाइड्रोजन का यहाँ एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मिथाइल शिफ्ट में हाइड्रोजन का आप समझ लेना। ठीक है, और जब भी ऐसे कंडीशन, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आप जब पेपर सॉल्व करते हो तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग यही प्रोडक्ट हर बार आंसर में दे देते हैं, ये गलत आंसर है, यही प्रोडक्ट आंसर मेजर आएगा। देखिए ये मिथाइल शिफ्ट यहाँ पे हो गया,
ये हाइड्रोजन यहाँ था वो निकल गया, अब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे ये डबल, ये आपकी सिंपल प्रोडक्ट है। आप सीधा सोचते हो, 1 2 शिफ्ट नहीं करते हो, तो प्रोडक्ट हमारी रहेगी, ऊपर वाले का नाम दे दीजिएगा, नीचे वाले का मैंने लिखा है 2,3 डाइमिथाइल पेंटूइन, वही हमारी मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ हमारा मन मतलब कि माइंड कंफ्यूज हो जाता है, हाउ इज इट पॉसिबल। सो दैट कंसेप्ट इज द 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट और 1 2 मिथाइल शिफ्ट। देखिए मैंने बोला था कि मैं आपको 2010 में JEE में एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था कि मेरे पास लिक्विड हाइड्रोकार्बन है, उसको मुझे करना है मिक्सचर ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कितने हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा। तो एक हाइड्रोकार्बन को क्रैकिंग करके आप छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में उसको डिवाइड करते हो, तो उस प्रोसेस को माय डियर फ्रेंड्स हम बोलते हैं पाइरोलिसिस और क्रैकिंग, ठीक है। दोनों आंसर आपको याद रख, पाइरोलिसिस का मतलब क्रैकिंग ही होता है, पाइरोलिसिस, अगर आंसर में पाइरोलिसिस है तो पाइरोलिसिस सिलेक्ट करो, और आप सिलेक्ट कर सकते हो क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब कि तोड़ना, तोड़ के छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में उसको, 2010 में क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था लेकिन वो बहुत इजी था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, वो फिलरक्राफ्ट अल्काइलेशन था, वो 2009 में था कि मेरे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसका मैं CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाता हूँ और मेरे पास कैटालिस्ट एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो मेरी प्रोडक्ट क्या रहेगी, एंड देन द प्रोडक्ट इज द टोल्यूइन, दिस वन इज द CH3, ठीक है। तो ये तो हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन उसी टाइम पे 2 3 साल में ये एक छोटा अच्छा क्वेश्चन। देखिए JEE मेन में क्वेश्चन तो बहुत इजी रहता है, लेकिन हम उतना रिवाइज उसको, मतलब कि एक कंसेप्ट हम याद नहीं रखते। ये भी हमारा रिपीट टॉपिक है। अब मेथड हम आ जाते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मैंने बोला था, ठीक है, ये भी एलिमिनेशन है। अल्फा कार्बन से हेलोजन निकालो, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, जितनी भी पॉसिबिलिटी है बीटा कार्बन का हाइड्रोजन की, वो सब पॉसिबिलिटीज ले लो। तो सबसे अच्छा अल्किन कौन सा होगा, जिसके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप रहेंगे, वो कौन सा रूल है, सेज-जेफ रूल, दैट रूल इज द सेज-जेफ रूल। लेकिन मुझे तो यहाँ सिर्फ आपको बताना है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से भी आप अल्किन बना सकते हो। एंड रिमेंबर द डेंजर पॉइंट हियर इज, हियर यू हैव टू टेक अल्कोहलिक KOH। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं थर्ड, एंड दैट वन इज द पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। किसी अल्काइल ग्रुप में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, और लिंडलार्स कैटालिस्ट का अगर आप यूज़ करेंगे, PD प्लस कार्बन और हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर एडसोर्ब होगा, वो हाइड्रोजन धीरे धीरे आप एंटर करेंगे तो 1 पाई बॉन्ड टूटेगा और ये 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो अल्काइन, एनी अल्काइन बाय दिस रिएक्शन कन्वर्टेड टू अल्किन। अगर आप पूरा हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमको कन्वर्ट करना है अल्किन में, तो आपको पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करना है, पूरा नहीं करना है, ठीक है। तो पार्शियल में भी, और इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया मेथड है, ठीक है। तो ये इतना इतना कॉम्पिटिटिव कंटेंट में लंबा नहीं चलेगा, 1 2 लेक्चर में ही ख़त्म हो जाएगा, बाद में हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आएंगे, ठीक है, सीधा हम 12th में एंटर कर जाएंगे। तो ये थोड़ा आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर प्रिपरेशन, अच्छी मेथड और अल्काइल ग्रुप के बारे में, अल्काइल नहीं अल्काइन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।